बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 9 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 11:11 PM। देखिए, अभी किसी ने एक सवाल पूछा कि मतलब ये NYPD में है साहब कि अगर अफ्रीकी मूल के हैं कि अगर काले बंदर की सिक्योरिटी की ज़रूरत हो तो आप हमें याद कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात है सर। साहब, बात सिक्योरिटी की नहीं है। मैं आपको कुछ सिखाने पे जब आपने कह दिया तो मैं शुरू हो गया। मैंने इसको हंसी मजाक नहीं लिया, मैं शुरू हो गया। इन एनिमल्स की सिक्योरिटी के लिए ना आपको मंत्र आने चाहिए। मंत्र मतलब संस्कृत। आप जानते हैं संस्कृत का जन्म कैसे हुआ? नाउ आई विल स्पीक टू यू इन इंग्लिश, हिंदी बोथ। A very senior person from NYPD, he is a African race. He asked me if you need a security for your black monkeys, which is very much big and inside the earth. So he is ready to work for me and work for us and for the monkeys. My answer is to you is why not? But as you said, I started myself to start teaching you. I'm not denying it, even I'm not taking it as a joke because you are African and black and that's why you're asking for black monkey. No. I'm taking it very seriously. And I started myself to teach you now. And that is, you need mantras. And you need to learn Sanskrit. But at least you have to, you must have to chant all those mantras which we need. You know why? Because Sanskrit is a language of animals. This is the world's topmost secret, I'm telling you. All of you. You know Sanskrit belongs to whom? It belongs to animals. Aum. This is the way the lion speaks. The first biggest mantra. And its vibration travels on earth. Aum. Aum. This is the first word in Sanskrit, Om. Right? You know how who invented it? Is Sadhu Sant, Rishi Munis. They go to wild, live there, and start learning what they are doing, what they are saying, and they start writing it. Apart from Hindi, it's a very different language. Right? And the word Tomeva Mata Cha Pita Tomeva, the Rishi Muni sing these lines for animals only. The vibration of Aum, it's very strong. It's traveled by earth, by air, and even in water. This is Sanskrit, and animals' life, if you observe very, very deeply, it gives you Sanskriti. So socialism is a Sanskriti. Society, culture in Hindi, not today. Kal is tomorrow. Or maybe yesterday. Char, eating. If you want to be in security of these large animals, you need to be very much perfect in Sanskrit. Otherwise, you can't able to hold them. You have to listen them what they are saying, what they are talking to you.
Only by the power of Sanskrit you can able to hold these animals. Like as I said in my earlier videos about tiger lizards and a unicorn. It's not a myth; it's reality. You know what is the real facility of unicorn? It can disappear suddenly in front of your blink of your eyes. It gone. But look, whenever we saw him, we never like to speak even a word. Even we never like to think in our mind. Whenever you go to near to any animal, just think you wanna kill him. He start his sending bad powers in you. Because he don't like to speak. He just like to char. The Sanskrit mantra, when I found it in a Nikhil Mantra Vigyan, Om Shrim Rim Shrim, Sammonaya Charachar Vashmanaya Fat. Charachar. Chara मतलब जो चरा रहा है उसको. चराना मतलब someone is taking a wild animal to let them feed in ground when eat the grass. So chara. Char means eating by the animals who are the vegetarians, not carnivores. Sammonaya charachar vasmanaya fat. Fat. Instant. This is the world's biggest, strongest Sammohana mantra, but very hard to understand. Very hard to face the real power of this mantra. Each and everything will they will stick on you. It's never a subject whether it's a voice, animals. Well, their internal power, their soul will first come straight to you. You know what happened to me when I was chanting this mantra, and as I said it, and I proved it, and I was sitting in my house, and suddenly I saw a mouse is coming to me. I was watching it just 2 or 3 hours before. Now suddenly what happened? Same things happened to me. Because animals SPG is internal soul power travel first to you, then his body. Once you start chanting this mantra, Om Rim Shrim Om Sammonaya Charachar Vashmanaya Fat. Charachar means entire Brahmand, entire universe. Otherwise, he will eat you. As these animals comes nearest to you, they will start watching you, what he is saying. He is doing something. Who is he? Because I watched so many animals videos, and I have a very good video of a lion. He's a first one. Shut up! The bloody!
कुछ नहीं है यार, वही बड़ी बहन के लोड़े भोसड़ी के जूश है। हाँ जूशों की है बहन की चूत इनकी। कुछ होता तो है नहीं ना, माँ के लोड़े जूशों के पास भोसड़ी के आ गए माँ की चूत काबा पे कब्जा करने वाली। बहन नहीं चोद देंगे हम। कभी राक्षसी विद्या सीखोगे तुम बहन के लोड़ो? तेरी माँ की चूत में दम है? तुम जानते हो बकासुर का खजाना क्या था? हैं? तुम्हें पता भी है हिरण्याक्ष कौन था? तुम्हें पता है हिरण्यकशिपु कौन था? तुम पता कंस कौन था? तुम जानते हो रावण कौन था? हैं? सिर्फ महादेव उसको संभाल पाए थे। बैठ के लोड़े जुइस माँ के लोड़े राक्षसी विद्या सीखे। बस वही जो है टट्टी गूमूत खाना सीख जाते हैं और कुछ नहीं। ओला लोड़ा कुत्ते का बच्चा बाहर बहनचोद रात के 10 बजे आके वो 11 बजे आकर के 11:30 बजे हॉर्न बजा रहा है अपनी माँ चुताने के लिए। तो पता है खजाने की वीडियो बन रही है। पूछ के काट बहन के लंडो जुइशों को काबा के आसपास। बहन की चूत मारी इनकी। हर 40 साल में इन्हीं बहन के लंडों को मारते हैं हम। और पता है ये कौन होते हैं? जो माँ के लोड़े भोसड़ी के जो है ना नॉन बिलीवर्स होते हैं। ये कहीं घुस जाएंगे बहन के लोड़े, हिंदुओं में घुस जाएंगे, मुसलमानों में घुस जाएंगे, ये कहीं घुस जाएंगे बहन के लोड़े। ये किसी काम के नहीं होते माँ की चूत की। साथ मरियम नवाज शरीफ है यार ये, और उसकी टीम है। चूत में डिवाइस लगा रखा हो इस बहन की लोड़ी ने। इसके खानदान की मैं वो माँ चोदूंगा ना, मेरे को मेरा और कोई काम ही नहीं है। तू मुझे मौका दे दी जा, तेरे पूरे खानदान की ना माँ चोद दी मैंने। तो क्या बात कर रही है मरियम नवाज? तेरा नाम ले लेकर मैं पूरा इजराइल की बहन चोद दूंगा। रावी पीसरा का नाम लेकर सारे रब्बियों की माँ चोद दूंगा मैं। तुम्हें इसीलिए तो जिंदा रखना मैंने, कारण तो होना चाहिए ना। सूदिया समझ रही है बहन की लौड़ी? अरे ये फंस गई वहाँ। मेरा महल है उसमें पाकिस्तान में, ये फंस गई बहन की लोड़ी वहाँ। मरियम नवाज की हकीकत बताता हूँ। नहा धो के पहुँच गए मरियम नवाज वहाँ रहने के लिए। बंदों ने दी गांड पे लात खींच के और एक कमरा दे दिया महल के अंदर ना, छोटा सा कमरा। चल पूरा दिन झाड़ू पोछा करवाते इससे। ये वही मरियम नवाज शरीफ है। निकलने देते नहीं वहाँ से। मेरे महलों की यही तो खासियत है। राष्ट्रपति बनना है तुझे? रामनाथ कोविंद ऐसे भागा और इसका घर परिवार, ये हकीकत है। एक कमरा दे के रखा हुआ था। चल अब बनना तुझे राष्ट्रपति बना, चल। और फिर महल में रख करके जो है झाड़ू पोछा बर्तन करवाते थे इस बहन की लोड़ी से। इनकी बढ़िया माँ चोदी भी है। अब इसकी माँ चोद के हाथ में इसलिए आ गई कि वेटिकन का भी खजाना यहाँ आ गया। क्योंकि वेटिकन के खजाने के बारे में बता देता हूँ। मैंने भेज दिया पोप को मैसेज। पोप ने जो है क्या कहते हैं चैलेंज किया था कि अच्छा बता वेटिकन का खजाना क्या है। वेटिकन का खजाना क्या है भाई? उसके वेटिकन के खजाने का जो है उसमें एक कछुआ है। एक क्या 2 करोड़ कछुए हैं। एक कछुए का वजन 8 लाख किलो है बस। अब वेटिकन मेरा हुआ, वेटिकन का खजाना मेरा हुआ। अब कहाँ जाओगे माँ चुदवाने? बहन के लोड़ा ईसाई है। मरियम बनी फिर रही थी तभी माँ चुदवाने आई बीच में। बहन के लोड़े वही है ये। इसकी वो माँ चोदी है ना हमने। ढंग से लगाइयो झाड़ू पोछा। अभी जैसे बाकी लोग कर रहे हैं ना, द्रौपदी मुर्मू का तो बैचेस का तो केला हो गया। शकल देखे थे चूत जैसी निकल आई है अब सबकी। हट आगे चूत तेरी। मोदी से की तो वो माँ चोदी थी ना पार्लियामेंट में सारे नेताओं की।
चलो सेशन खत्म ना, चल झाड़ू पोछा लगा। मारते अलग थे इन्हें। बाद में किसी तरह बाहर निकला, कॉन्वॉय में बैठ तो गया आराम से, सीट तो चेक कर ले। बाहर से गाड़ी देखने में जकाजक है और सीट में से वह फोम गायब है। रामनाथ कोविंद की गांड में स्प्रिंग घुसी गच। राष्ट्रपति भवन के कॉन्वॉय में। हकीकत है ये, और क्या। ये क्या अभी ये सोच रही कोई बचा ले, बचा के कोई लौड़ा भोसड़ी की तरह। कर्म ही ऐसे माँ की लोड़ी, बहन की लोड़ी। तो जहाँ रह रही है ना, मेरा घर है वो, मेरा महल है, तेरी माँ की चूत। समझ में आ गई है तो है। अमिताभ बच्चन की वो बहन चोदी ना, अमिताभ बच्चन रह रहा अपने घर में, पहुंच गया चौड़ा होकर के, बैठ के लौड़े को स्टोव पकड़ा दिया, मारता रहे पंप। हाँ, अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम भी कराते थे, और इसको इसके घर में ये हमारा मेरा घर है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, चल हाँ आपस में बैठ के लड़ो, अपनी माँ चुदवाओ, चल झाड़ू पोछा बर्तन। कुली पिक्चर देखी है? नहीं बता, कुली पिक्चर की हकीकत मालूम है तुम्हें? नहीं। बैठ के लौड़े से हाँ, मुंबई CST में बैठ के लौड़े से जो है ना कुली का काम करवाया हमने। हकीकत है ये, शर्त लगा लो। स्लम डॉग मिलियनेयर इसी पे तो बनी थी पिक्चर। गिरा नहीं था, उठा के फेंक दिया था उस बैंड के लोड़े को। नहीं, बच्चा नहीं था, बड़ा था उससे। और क्या। कह रहे गोरे कैसे हो जाते, मैं बताऊं रहस्य। गर्मियों में ना इनको रहने के लिए बिजली पंखा थोड़ी मिलता है, गर्मी में रह। तू रह ले पसीने में, तू क्या कहते हैं 2 साल एकदम बंद कमरे में, पसीने से तरबतर ना तू गोरा हो जाए तो नाम बदल दियो। अब इसकी और माँ चौधे मेरी टीम। हाँ, अब इसकी और माँ चौधेंगे इस बहन की लोड़ी की। तेरी माँ की चूत, ज्यादा दिमाग मत लगा यहाँ पे। समझ में आई? अंदर एक कुंदक में मैं जो कुछ भी करती रहा, तेरी माँ की चूत ना हमें क्या लेना देना, तू बाहर क्या कर रही है। आई मेरे से शादी करने मरियम नवाज। रट। चूतिया समझ रही बहन की लोड़ी, साथ के साथ बोले जा रही है माँ की लोड़ी। उससे पहले नहीं बोल रही थी, जैसे ही खजाने की बात आई ना वेटिकन की, तो पढ़ 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 बोलने लग गई। मरियम नाम रख लिया अपना, इसका असली नाम पता है क्या है? क्यों सलमा? अब तक तेरी खोलने वाला मिला नहीं। है क्या बात, तू डिफेमेशन केस करेगी? अच्छा, तुम्हारे जैसे बैंड के लोड़े भोसड़ी वाले पॉलिटिकल लीडर के जो अपने आप को चमकते फिरते हो ना, मोदी चमका कर रखता था पीएमओ बढ़िया तरीके से। शर्त लगा ले, सिक्योरिटी वालों को भी नहीं पता, मेरी टीम वाले करवाते थे सर झाड़ू पोछा पीएमओ में। मैंने कहा ना, नहीं ये प्रधानमंत्री बना, मेरा बाकी हो मत। फिर नला धुला करके चल चल भाषण है। अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो। एक नई पिक्चर आ रही है, पता है कौन सी है? एक पिक्चर ऐसी भी। रावी पीरज़ादा को कहाँ बैठा दिया?
और करनी है बदमाशी, और करनी है। हम्म? और करनी है। और इससे इससे बड़े महल में रखवाऊं तेरे को? रामनाथ कोविंद और उसके घर परिवार की तो वो बहन छोड़ी ना हमने। हाँ, जब से मैंने ड्यूटी संभाली ना, मैं करवा इस बहन के लोड़े से झाड़ू पोछा, इसके घर परिवार से, इसकी माँ की चूट चमका के रखे एकदम। ये अपूर्वा सिंह को पता लगा जब ये पहुंची संसद भवन में, चल 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 झाड़ू वाड़ू सब, स्वच्छ भारत अभियान आ चला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, चमका के रखे से। हाँ, यही मरियम नवाज। कालेश्वर राणा से पूछ रहे बंदे, कह रहे क्या बात है, घर कैसे चमका रहे हो? बेचारा किस मुंह से कहे हितेश भाई के ऑर्डर है, ढंग से रिपेयर करवाते। अभी पुष्पा को ऑर्डर ढंग से रिपेयर करवा दिया। मारेंगे बहुत। प्रीति आई, रोड पे चलने में दिक्कत हो रही, मैं रोड बनवाने बैठ के लौड़ा सब फिट हो गए। अब इसको बोला मैंने कालेश्वर राणा को, यार ये बाहर की टाइल चेंज करवा, चूतिया बेकार लगती, पैसे पहुंचाएंगे। मकान टिका बैठेगा। अरे राम का मकान पिंक कलर का हरा कपड़ा डाल रखा। अरे राम और फंस गया, पता कैसे? पहले मकान पिंक, तो पिंक का मतलब होता है प्यार दिखा रहा है, उतने बड़े ध्यान से देख रहे बिल्डिंग की तरफ। अब कह रहा हरा रंग मतलब ग्रीन सिग्नल दे रहा है। राम की बीवी फिर सर पकड़ के बैठ के लगी, चूतियों से पाला पड़ गया। अरे राम के लिए कह रही, कह रहे कलर कौन सा करवाए? भुवनेश्वर राणा ने जो है प्लस्तर करवाया, और वैसे लाइनें डाली वो टेढ़ी सी, कह रहे वो उसमें जो पानी बह के चला जाए करेगा, तो टेढ़ी टाइल क्यों लगवा रहे? करे गंदे जैसे बाकी चूत। अबे टॉयलेट में लगाई जाती है टाइल, किचन में चूत है क्या? नहीं पसंद आया, ठीक करा से, माँ कसम, मैं ढंग से ठीक करे से। भुवनेश्वर राणा को पैसे भेज, मार्बल लगवावे। मार्बल का काम करा घरों में। इस भागे लौड़े को पैसे दिए, बैठ के लौड़ा ने मकान ही टेढ़ा बना दिया। अब सीधा कैसे तेरी भागी चूत, बैठ के लौड़ा, पैसा ले और तोड़ से, और क्या मकान ही चुके। रिंकू का मकान भी तो तोड़ेंगे यार, वैसे चूतिया सब बना रखा। इसने फिर भी ठीक करवाया, पर ठीक कराते कराते परेशान हो गया।
किराएदार आ रहा है, सामान कहाँ से ऊपर जाएगा ना, सामने से सीढ़ी में ऊपर जाने का रास्ता। फिर वैसे ही इसने करवाया भुवनेश्वर राणा ने। फिर परेशान, एक कमरा आप भी बाहर है क्या? लौटे क्या चूतिया इसके। अबे हाँ, इन दोनों का मकान का चूतिया पर देख देख के सच के पेट में दर्द है। फ्लैट सिस्टम बनाने चला, बना तो लिया, बाद में सोच रहा अब एक कमरा फिर बाहर छूट गया। अबे गेट का कलर मैरून मत कर, कुछ और टक। इसके साथ क्या करें? अनवर खान को पैसे भिजवाए, अनवर खान गाड़ी करा, अब चॉकलेटी कलर, बाकी लोड़े पैसे दिए दिए, भोसड़ी के डिस्टेम्पर करवा रहे, बैठ के लोड़े ढंग से नहीं, डब्बा सा बना दिया चूतिया ने। पहले इतना सुंदर लगता था इसका मकान यार, जो रेलिंग इसने बनवाई वेरी ब्यूटीफुल, छिपा का भोसड़ा पहन के चुतिया क्या बात होती तो पूरे मकान की बद मार दी। पहले इतना प्यारा लगता था ना इसका मकान, देखने में अच्छा बनाया इसने कॉर्नर से, वेरी ब्यूटीफुल। दिखा दी ना बहन के लौड़े ने कटवे वाली। मतलब फिर एक समय पे जाके आगे तो फिर कटा हुआ दिख गया। पहले अच्छा बनाया जैसे जो लोहे की ग्रिल है, फिर लोहे की क्यों लगवाई है, उसमें 2 फीट लगा करके उससे क्यारी बना देता ना सीमेंट की, लोहे की ग्रिल से वेल्ड करके। तुम बैठ के लौड़े रमेश गुप्ता के टीम के इंजीनियर हो पक्का। रमेश गुप्ता की टीम के इंजीनियर है। रमेश गुप्ता की ना कंपनी डूब गई, ठीक है, मैंने बंदे भेजे, मैं चला दे इसकी कंपनी। रमेश गुप्ता को आज तक समझ नहीं आया। एक दिन किसी ने हिंट दिया उसे, यार तू जानता है तेरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिलवाया? कि अरे वो देखो हितेश ने, तो भरोसा ही नहीं हो रहा। तुम्हारी लाइन में कौन का मकान इंजीनियर से शुरू होता है, उस इंजीनियर की ही मदद ले लेते यार। बहाने से आते मेरा घर देख रहे, 15 बाई सिपाही करते थे, बढ़िया फ्लैट सिस्टम बना रखा बंदे ने, और नीचे वाले से ज्यादा ऊपर वाला यार टा लगता थे। बहाने से आते, मैं आने ही नहीं देता। नाप नाप के देख रहे, कह रहे यार सीढ़ी भी बढ़िया निकाली हुई है, अलमारी से लेकर पलंग तक चढ़ा उतार देता है। ऊपर का किचन देखो तो जबरदस्त बना हुआ, कमरा भी ठीक ठाक है, लेटरिन बाथरूम सब ठीक ठाक है। देखा भाई ऊपर वाले का जो है काम मैं करता हूँ, मैंने कहा नीचे वाले का काम मुकेश। डिजाइन ही भाई चौथ का रख दी। मैं ऐसे कह रहा अंदर एक और डिजाइन बड़ा शानदार बनेगा। मेरा जी करता हूँ, देखो ना घुसने ना तू यहाँ पे, भाग ऐसे। ऊपर वाला फ्लोर आके देखो, वेरी गुड, बहुत डिसेंट बना हुआ। हाँ, नीचे वाला में देखो किचन भी छोटा, एक गैलरी बीच में जो है ये भी छोटी है, ठीक है, टॉयलेट छोटा। और मात्र बीच में जो है एक दीवार का होर फेर है, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं है।
इतना जबरदस्त है ना ऊपर वाला मेरा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और बिल्डिंग में एक कॉर्नर ऐसा जबरदस्त बना है वो, इंजीनियर्स कह रहे उधर से बंदे कह रहे आर्मी वाले देख के गए, कह रहे अगर मंडल इस कमरे में बैठा ना लड़ा रॉकेट लॉन्चर का भी असर नहीं है। यार क्यों? बैठ के लड़ा 20 इंची दीवार है। कह रहा 15 बाई 21 में 20 इंची दीवार। कह रहा एक कॉर्नर इतना सेफ है इसके मकान का, बैठ के लौड़े पूरी कॉलोनी गिर जाएगी, भूकंप में इसका मकान नहीं गिरेगा। मैंने पता है कितना फ्रेम में बेसमेंट 6 लाख रुपए लगा दिए, 6 लाख रुपए, मतलब बेस में ग्राउंड फ्लोर बनाने। ऊपर तो सीधा बड़ा आसानी से बन गया, ऊपर वाले में 50,000 एक्स्ट्रा लगे बस, एस्टिमेटेड। बाकी तो परचेज थी। नीचे वाले में लगा 6 लाख रुपए लग गए, 6-6.5 लाख रुपए लग गए नीचे बेस। हाँ, नींव खोद के और ऊपर तक लाने में। नीचे नींव है इस मकान की, अभी जो इसकी हाइट है ना ग्राउंड फ्लोर मतलब रोड से 2 फुट 2 सीढ़ियाँ ऊपर है, 3-2.5 सीढ़ी, 9 दूनी 18 और 6 24 इंची। हाँ, मतलब उतनी भरावट के बाद, और उस हिसाब से नीचे लगा लो तो 11 फुट तो क्लियर है। 11 फुट का तो टैंक है, 11-10 फुट का पानी का टैंक मेरा, गहराई नाप लो। और उसके बाद नीचे जो है 2 फुट और होगा। और पता है कितना है चारों तरफ की बाउंड्री जो है इसकी? 18 इंच है, 18 इंच घूमी हुई है, फ्रंट बैक दोनों, चारों तरफ 18 इंच घूमी हुई है। और 18 इंच घूमी हुई है कम से कम 8 फुट तक, 8 फुट नहीं से कम होगी, पर हाँ घूमी हुई है बढ़िया से, उसी तरह से कम होती गई है फिर। हाँ, बड़ी कोशिश करी, इसीलिए इसी वजह से आराम पिटते बचा था। नहीं कहा, मैं कहा फालतू बोल रहा, मैं कहा मैं तेरी उम्र का ले आ जा, नहीं तो बैठ के लट भोसड़ी में गाली देती, मैं बहन चोद मारूंगा बहुत भोसड़ी का तेरे को, जैसे बेटा सफेद इसकी भाई में चला जाए, दोबारा गाली मत देती है, बहन के लट इस बार तो दोबारा नहीं छोड़ूंगा। वो पहली बार में फीस उतार दी थी मैंने। अरे वो ईंटे का ट्रक आया, ट्रक आने के बाद जो है उसमें ईंटें रखी हुई थी, तो उसमें जो डस्ट थी ना वो वहीं गिरा के जाते हैं, वो लेके नहीं जाते। मैं गिरा दे भाई, वो पैर से जा कह रहा कि धूल उड़ रही है। मगर तूने का मकान हवा में बनाया था, बर्दाश्त कर ले कुछ टाइम। बहन के लौड़े जब से आया हूँ यहाँ पे तब से किसी न किसी की माँ चुतरी है। कभी पुष्पा आए वहाँ से काम वाम करके आते के साथ फिर बकचोदी के फार्म भरने लगे, इधर उधर ये कर दिया वो कर दिया। वे तेरी बहन की चूत। खुद एक लेडी की मैंने सर्वर वॉइस पकड़ी, खुद कह रही हो मेरे पानी के टैंक में ना जो बना रहा था मैं, बल्कि अच्छा हुआ ठीक है उसने जो है कुत्ता डब फेंक दिया उसमें, पकड़ के फेंक दिया। मैंने सर्वर वॉइस पकड़ी, बाद में इतना मारा ना मेरी टीम ने बहन के लिए उससे घर परिवार को। अभी कुछ दिन महीने 2 महीने पहले की बात है। और उसको मैंने सेफ्टी टैंक बना दिया, पानी का टैंक नया बना लिया मैंने पीने का पानी का, बस। और दीवार नीचे मोटी है, ये इतनी बहन की चूत हरामी नस्लें हैं ये। मैंने तो पुष्पा के भी बांस चढ़वा दिया, वे तेरी बहन की चूतिया समझ रही है तू। अब प्लॉट पे आ करके चे कर रहे हो, बाहर निकल यहाँ से, चल। समझ में आ गई यार? हाँ उस तरफ ये कर दिया वो कर दिया, भाग यहाँ से, बाहर निकल यहाँ से पहले प्लॉट, चल। यही माँ की चूत बहन की लोड़ी। और फिर फटाफट उधार ले, कमेटी ले, जो मर्जी कर। हाँ मेरे से ऊंचा मकान बनाएंगे, मेरे बंदे भी शान है। कह रहे बना लिया ऊंचा मकान? हाँ। ऊपर चढ़ के जरा नीचे देखियो, नीचे देख रहे, कह रहे हो गया ना मुंह नीचा। कह रहा मंडल का मकान जब भी देखोगे ना सर नीचे करके देखना।
भुवनेश्वर राणा, कालेश्वर राणा ऊपर से देख रहे, ठीक है, कह रहे इसका सर हमेशा ऊंचा रहेगा, तुम्हारा नीचा रहेगा। भाई चोती, मेरे बंदों ने पैसे ले ले, क्या दिक्कत है। भुवनेश्वर राणा पीट दिया बंदे ने। मेरा बंदा पैसे दे के गया इसको। पैसा पैसा, अबे उधार लेके कमाई है नहीं, चूतियापंती वाले काम कर दिए, मर्डर कर दिया, बहन के लड़ो पैसे देंगे नहीं। समझ में आ गई? उधार ले लिया है, अब उधार ले लिया तो वो चुकाएगा कहाँ से? मकान बना लिया। मैंने कहा, इसकी बीवी कह रही 5 करोड़ में मकान बेचने में थे। अरे वो बंदा पहुंच गया, अरे पहले मेरे पैसे दे, मकान कैसे बेच देगी? अरे सौदा हो गया। अब ये जाएगा वो भाई बहाने से, दारू पीने के बहाने बुलाता है, मारता है। लड़का कितने दिन तक पैसा कमा के दे देगा? लौड़ा नौकरी गई हुई है, पैसे मिल नहीं रहे, कैनिबलिज्म में पकड़े गए हैं, फाइल सबकी लगी हुई है, मरता क्या ना करता। ऑटो वाले का ऑटो उसका नहीं है, चुका कर जा। जय गुरुजी आश्रम से पैसे उठा के लाया था। हाँ बिल्कुल सही है, जब मर्जी बात कर ले। जय गुरुजी आश्रम वालों ने पैसे दिए, जा रहे हो हितेश को दे देना, वहाँ आपके घर के सामने जो मकान है, जानते हैं मेरे को। इसने पैसे रख लिए खुद, 2 दिन 3 दिन इंतजार करे। SPG तो यहाँ चली रही है जय गुरुजी आश्रम वालों की, वो पहुँच के पैसे उठा लिए उन्होंने। कर चुका था ना हितेश को देने के लिए, पैसे लेके चलते बने वो। बस उस दिन के बाद इसकी बेइज्जती और हुई इसकी। ये ऐसे फंसे हैं सबके सब। ज्योति आंडा क्या करेगी? ज्योति आंडा फंस गई फ्रॉड में कमेटी के और नकली नोट चलवाने के चक्कर में। अब मंडल का क्या करे? मंडल के पास आएंगे, बात करेंगे। मैं क्यों बात करूं भाई? तुम जानो ना तुमने क्या किया। केस अकेला मैंने थोड़ी कुछ बोला, मैंने तो सिर्फ बात करी थी। तुम्हारे खिलाफ जिसने केस कराया उसको पकड़ो ना। बिल्कुल नकली नोट थे वो, कहाँ से आए थे? पाकिस्तान बारादारी के रास्ते आए थे। बिल्कुल यही खेल तो था एक बड़ा तगड़े वाला। समझ में आ रही है? या कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे। वहां से कह रहे छुड़वा लेंगे, वो पैसा भेजते हैं, वो दूसरे बंदे आगे पहुंच जाते, ब्याज ही नहीं भर पा रहे, ब्याज ही नहीं भर पा रहे। और जिस बंदे के पैसे देने हैं उसको पता लग गया कि क्या कहता है हितेश 5 करोड़ देने को तैयार है मकान के। वो कह रहा भी पैसे मैं लूंगा सारे भुवनेश्वर राणा से, मकान मेरा है, मैं दे दूंगा हितेश भाई को। यही हाल कालेश्वर राणा का, यही रिंकू का। रिंकू फंस गया दारू के चक्कर में, इसने मंगवा लिया ट्रक मंगवा लिया, पैसे दिए कईयों ने मिला करके। पहली बार ही 11 शाणे बन रहे थे, दारू का ट्रक पकड़ लिया पुलिस वालों ने, मारा अलग, पैसे अलग रख लिए। माँ और चौधी इनकी शर्त लगा ले। क्यों? वजह बताता हूँ मैं। मनोज की जो बात हो रही है, मैं बताता हूँ ना पुलिस वालों ने क्यों इनकी माँ चौधी है। मनोज ने, विनोद ने, कारण है। इसने पता है क्या बोल दिया? कईयों को कहता फिरता था रिंकू, नवीन, भुवनेश्वर राणा, ये सब कहते फिरते थे, अरे पुलिस वाले क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, आगे पीछे घूमते हैं, 100 रुपये की गोली का तो खेल है। बस पुलिस वालों ने कहा देख बहन के लौड़े, तेरा पैसा भी ले लेंगे, तेरी माँ भी छो देंगे। ये है असलियत। लिख ले कागज पर अगर झूठ निकले तो। इसलिए रिंकू की बीवी ने कहा अपनी माँ की झूठ में जा, बहन के लौड़े भोसड़ी के, मैं तो मंडल से शादी कर रही हूँ, उसने मेरे से शादी कर ली भाई। मैं मना ही नहीं करता, कर लिया तो फिर यहाँ आके रहे, बाकी मैं नहीं जानता। वरना वो धमकी का लंड देगा भोसड़ी के। वो दारू का ट्रक मंगवाया था इसने, ओ क्या नाम है, लोकेश, कैसल 9, शाणे बन रहे थे बहन के लोड़े, मेरे को बीच में रखा नहीं। बेटा खेल ऐसे नहीं खेलते ना, बाप से पंगा नहीं। शंकर जगेतिया, रिंकू, आसिफ और भी कई लोग थे, और ये भुवनेश्वर राणा का लड़का दारू का ट्रक मंगवा लिया सप्लाई के लिए। बहन के लौड़े सप्लाई ऐसे नहीं जाती। बस पुलिस वालों ने ट्रक पकड़ लिया। इसके मालिक को हमारी टीम ने उठा लिया, विजिलेंस वालों ने। शाणे बन रहे हो भोसड़ी के। बेटा लाइसेंस तो उठा लेता एक दिन का। अब दिल्ली में अब भी सप्लाई जाती है मेरी, दवा के सप्लाई है दारू की मेरी। कहीं पूछ ले दारू का ट्रक कहीं चल रहा हो, मेरा चलता है, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है, मेरा चलता है, पर लाइसेंस पे चलता है। एक दिन का लाइसेंस उठाते हैं हम, एक दिन का लाइसेंस होता है। शादी ब्याह पार्टी दिल्ली में भाई साहब हम सप्लाई करते हैं। कहीं हो, कहीं किसी शादी ब्याह में कितनी दारू की जरूरत हो,
पिप्पा पार्टी हमें क्या लेना था, तो पिप्पा पार्टी करा कुछ करा, दारू मंगानी है ला देंगे जी, लाइसेंस ही आती है। पर एक दिन का लाइसेंस होता है, पुलिस वाले भी जानते हैं मंडल के ट्रक जा रहे हैं, सब जानते हैं। कह रहे इसका काम एकदम बढ़िया है, कह रहा चिंता ही नहीं है, अगर पेपर दिखा देगा पहले ही, कंपनी गोदाम से लोड हुई है गाड़ी, शादी में जा रही है, ना शादी में रेड का चक्कर, ना पुलिस वालों को दिक्कत, एक्साइज वालों को पैसा चला जाता है सीधा। कह रहे इसका काम तो एकदम बढ़िया वाला है इसका। तभी तो वो देसी मैं देसी वालों से मैं बात ही नहीं करता, सांसियों से मैं कर रहना देना यार, मैंने कहा अपने आप समझो, मैंने बंदे मरे ना, फिर देख लो कुछ धंधे पे असर पड़ता है ना फिर। तभी तो मैंने कहा था, अरे मैंने कहा यार मैं मिलवा देता हूँ इसमें यार, ले मंगवा देता हूँ ट्रक, तो जॉनी वॉकर बेच दे यार, क्या हो गया इसमें, बंदे तो मत मारना ऐसे, कच्ची है यार ये, कच्ची तो अब तो बंदी हो गई बिकनी, सबको पता है। कहते हैं भाई साहब वैसे पी लो, हाँ पक्की वाली पी लो, कच्ची स्पिरिट होती है। दारू के धंधे में मेरा कब्जा है भाई साहब, ऑल ओवर इंडिया में मेरे ट्रक चलते हैं, कहीं कहीं मंगा लो कितनी दारू। अगर आज से 1 महीने आगे भी है ना तुम्हारे घर शादी ब्याह और तुम्हारे को 1 ट्रक दारू चाहिए, बोल दो, 1 महीने आगे का लाइसेंस ले लेते हैं हम, उस दिन का लाइसेंस ले देंगे आपको, उस दिन आ जाएगी आपके पास जो दारू बचेगी, ठीक है, उस लाइसेंस पे आप यूज़ कर सकते हो। वो पता है कि 1 दिन के लाइसेंस पे आई थी, शादी ब्याह में खपत हो जाती है, वो कैटरिंग वाले ज़्यादा बताते ही नहीं है यार। 100 पेटी बियर, ठीक है, 50 पेटी बियर, कोई बड़ी बात नहीं होती। एक रात में जो है अभी अब हाँ सब जगह धड़ल्ले से रोज का रोज वही तो उसी में तो फंसे। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, इंटरनल क्लब के अंदर इंटरनल चाहे कुछ भी करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दे दिया ना उसने, बात खत्म, क्योंकि दारू खुली बिक रही है ना, बोतल तो नहीं रखी ना तुम्हारे आगे, बात खत्म। ना क्लब के अंदर की मर्जी क्लब की होती है, चाहे वो रिफिल करके बेचे, कुछ बेचे, एक बार उसके पास आ गई तो उसकी हो गई ना, क्लब के अंदर नहीं चलती भाई साहब, भाई वो उसकी प्रीमिसेस है, कोई रेड नहीं है। बंदा मर गया तो वहाँ चोट देंगे तुम्हारी, कुछ हो, कॉकटेल क्या होती है फिर जब आप बिक रही है तो उसे पता है ना अपना ग्राहक कैसे रखना, उसे नहीं बोलते भाई साहब, कुछ बोले कुछ कर लो तो। रोड किनारे थोड़ी रिफिल चलेगी, सरकारी जगह है भाई। हाँ जो फंसे हैं केस में फंस गए, इसने पैसे पूसे दिए पुलिस वालों को, बाद में केस में फंसवा दिया। ऐसा नहीं होता, हम तो बात ही नहीं करते। नहीं खुद पर्पसली जान पहचान रिश्तेदारी में पैसे दिए, इसके जानकार हैं। नौकरी लौड़ा हुआ जो गई वो तो पहले ही जानी थी उनकी नौकरी। और क्या, मेरे क्या बात कर रहे हैं आप, दबा के चलते मेरे दारू के ट्रक। नहीं वैसे तो ठेके भी है, कंपनियां भी हैं अपनी, और जो 1 दिन के लाइसेंस की जाती है ना ट्रक, मेरे जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, सबको पता है देश के हैं। और ऐसे ही थोड़ी रिचेस्ट मैन ऑफ द ईयर, ऐसे ही थोड़ी पैसा कमाना शुरू किया मैंने, गलत काम नहीं करते, सब कुछ वैलिड होता है, पेपर वर्क पूरा कर ले पहले, पता रहता आराम से। एक बार क्या कहते हैं थाने में बता देते हैं, नहीं जहाँ से ट्रक चलता है कंपनी वाले ही बोल देते हैं ये ट्रक नंबर है, जा रहा है ये चेक कर लो आप, यहाँ से लोड हो गया, ये लाइसेंस है, इस जगह जानी है, ठीक है। वहाँ जाते ही आराम से अनलोड करा देते हैं, पैसे आपके भी रखे जी एक्साइज के। हाँ पुलिस वालों का पैसा जाता है, क्यों नहीं जाता है, एक्साइज तो क्या, एक्साइज पुलिस वाले नहीं है तो और कौन है भाई साहब। पुलिस वालों को टैक्स से मतलब होता है, अगर आपने टैक्स चोरी करी तो फिर तुम्हारी रेल बना देंगे,
और पुलिस वालों का पैसा क्या होता है? एक्साइज नहीं है तो और क्या है? इनकम टैक्स नहीं है तो और क्या है? ले, आर्मी वालों का पैसा क्या है? यही तो जाता है, ये पैसा हम रोकते नहीं कभी। ये पकड़ो भैया अपना पैसा। हाँ, बल्कि उसमें जो है क्या कहते हैं, नहीं होता है कई बार बहुत बड़े सौदों में, जैसे अभी रुका पड़ा है इसका रशियन ऑयल फील्ड का मामला रुका पड़ा है, तो उसमें एडवांस हमने जो है ना सिक्योरिटी टैक्स भरवाया हुआ है ताकि कोई और बिड ना डाल दे, तो उस पर बात रुकी पड़ी है रशियन ऑयल फील्ड का। तो वो पहले थोड़ी करवा देंगे, सिक्योरिटी टैक्स भिजवा दिया हमने। मैं कहा सर ये रख लो आप पहले, ऐसे होते हैं सौदे। रशियन ऑयल फील्ड में मज़ा आएगा ना काम करने में। देखते हैं पुतिन के दिमाग में अगर बैठ जाए कुछ तो बिजनेस है भाई साहब, हम क्यों पड़े इनके फालतू मामलों में। उस दिन मैं इसको हिंट दे भी रहा था, ये मेरे से कह रहा था रिंकू मैं बिजनेस की बात करे तो जब मर्जी कर ले। कह रहा यार बिजनेस क्या करें? मैं कहा चला ले कोई दारू की कंपनी। अच्छा खासा इस चूतिया को वहाँ भेजा मैंने, चंडीगढ़ चला गया ये, तो रहना चुपचाप वहाँ पे, यहाँ फिर आ गया मैच पे। छोड़ना यार, तेरे को जब समझा रहा हूँ तेरे को वहाँ फिर दिमाग लगा रहा है, पता नहीं कौन सी बदमाशी है तू। अब भैया अब तेरे से हाथ जोड़ लिया हमने, तू समझ, तेरा काम समझे, हमारी ज़िंदगी प्रभु श्री राम समझे, बात ख़त्म। अब नहीं बोलता मैं इनमें से किसी को भी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भैया, जैसे रह रहे हो तुम वैसे रह रहे हम। समझ में आ गई ना, बात ख़त्म। साथ रह रहे तो हमने पूछ लिया, घर बेचेगा भाई बेच ले, पैसे मिल जाएंगे तेरे को। कालेश्वर राणा ने कन्फर्मेशन दे दी थी कि हाँ जी पेमेंट आ गई है, 5 करोड़ मैंने करवा दी। पुष्पा ने कन्फर्मेशन दे दी जी पेमेंट आ गई, बात ख़त्म है जी। नहीं, जमानत के पैसे चाहिए ना इनको, केसेस में जमानत का पैसा नहीं है ना। भुवनेश्वर राणा को भी तो जमानत के पैसे चाहिए थे। नहीं केस है, ये समझेंगे ना। मैं कहा ठीक है जी। हाँ भुवनेश्वर राणा की हो गई है पेमेंट, ले ली भुवनेश्वर राणा ने पेमेंट ले ली। तो मैं नहीं बोलता जी फालतू, मैं नहीं करता। ये कोने वाले की हो तो गई पेमेंट, ये अनवर खान के सामने जो नया बना है हो गई, इसकी पेमेंट हो गई। गवर्नमेंट को तो पैसे से मतलब है ना, मकान का चाटेगी गवर्नमेंट, वो मेरे को ही बेचेंगे। अब मेरे बंदे कल या परसों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कितने मकान जब्त हुए सर? इसका नहीं खरीदा था हमने, अरे ये जो था हीरा व्यापार, क्या नाम था, क्या हीरे का जो था, नहीं ऐसे करके जो मुंह है उसका, हाँ उसका। और विजय माल्या की पंजाब नेशनल बैंक ने ऑक्शन नहीं लगाई थी, मैंने ही तो खरीदी है। सब वही तो चल रहा है सारा काम। ऑक्शन सारी ऑक्शन खरीदते हैं भाई साहब हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ऐसे ही थोड़ी पैसा कमा के बैठा हूँ। बैंकों की प्रॉपर्टी की ऑक्शन हो, कुछ भी हो, सब खरीद लेते हैं हम। विजय माल्या की जब ऑक्शन लगी थी मैंने खरीदी। इसकी कितनी गाड़ियाँ थी, रोल्स रॉयस वगैरह सब लगा करके, मेरे को कह भी रहे, क्या कह रहे थे भाई सेकंड हैंड है, मैं खरीदना। तो ऑक्शन लगी हुई है इसकी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ने लगाई थी ऑक्शन। तभी तो पिट रहे हैं सबके सब। जालसाजी अलग लग गई, 420 अलग लग गई। हाँ मेरे मामले के केस अलग है। नवाज शरीफ के ऑक्शन आएगी अभी। कल परसों फिर जाएंगे मेरी टीम के बंदे सुप्रीम कोर्ट, पूछ लेंगे सर कोई प्रॉपर्टी है ऑक्शन में। वहाँ खड़े रहते हैं ना ट्रक पैसे के, हाथ के पेमेंट होती है जी, ये रख के कैश। वो प्रॉपर्टी के पेपर वहाँ पे जो जब्त होते हैं वो बता देते हैं, साइन करते हैं, ये लो जी सर पेमेंट, ये रही सर, टकाटक। बिल्कुल खरीदते हैं, बैंकों से खूब खरीदी है ऑक्शन मैंने।
ना ना, हम तो वहाँ पे सीधी बात बोलते हैं, बैंक से पहले बात हो गई, आपको क्या चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं, हम तो मार्केट रेट पर उठा के खरीद लेंगे, 1.5 गुना दे देंगे। और बोलो, इतना मिलता नहीं है। पर हमारे हमारे को देखते ही बैंकों के चेहरे पे स्माइलें आती है। मेरे मंडल के बंदे हैं, वहाँ का बोलड़ा अगला पिछला सब हिसाब बराबर कर देगा ये मिनट में। हम तो क्या क्या घाटा चल रहा सर। अरे यार इसका नाम तो बड़ा, अरे डायमंड मर्चेंट जो था, अखबार में आई थी इसकी ऑक्शन। यार ये भग भी गया था। एक तो मेहुल चौकसी भगा, वो नहीं। विजय माल्या भगा, वो नहीं। एक और भागा था ना, हाँ हाँ वो, अरे यार मैं बताता हूँ, मैंने खरीदी थी ऑक्शन उसकी। वो बैंक वाले सीधा बोल देते, कहते हैं जी 1 शॉट है जी, हमें पता है जी, पेमेंट की सिक्योरिटी। वो देते हैं नहीं पेमेंट की सिक्योरिटी। हमारी टीम के बंदे तो मिनट में दिखा देते हैं, करिए रुको जी। अब तो पता है बैंक वाले क्या करते हैं, क्या खुद ही सीज कर लेते हैं। कह रहे जी ऑक्शन नहीं हो रही इसकी, हमने जब्त कर ली, बाद में मैं खरीद लेता हूँ जाकर। कह रहे छोड़ना, ऑक्शन में साले दिमाग लगाते हैं खाना। ऑक्शन में ही आएगी ये कॉलोनी, शर्त लगा ले। हफ्ता भर और जा रहा है कोई, कैनिबलिज्म में फंसे हुए हैं ना। बैंक सुप्रीम कोर्ट नीलाम कर देगा और कुछ नहीं होगा। मेरे बंदे पता है क्या करेंगे, वहाँ आराम से बैठे रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, कैंटीन में, और जैसे ही लगेगी ना, जा ले खरीद ले ना। सुप्रीम कोर्ट में पहले कह देंगे, ओके वो साहब ने बुलाया उनको, वो आराम से आएंगे जी सर। ये है जी ऑक्शन में, ठीक है सर कितना देना है सर इसका। सुप्रीम कोर्ट जैसे मान लो इस कॉलोनी का अंदाजन 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए मान के चल रहे, 600 साढ़े 600 करोड़ मांगे, वो तो 40% लेस मार देंगे वो सीधा उठा करके। जो भी हो, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है। 650 करोड़ बोलेंगे सर, आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा इसमें, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार हो जाएंगे सर, तो आप ही करा देना सर, तो सब करा देंगे। वो बिना देर करे उसी समय एक अटॉर्नी देंगे हमारे को। यार नुकसान तो है इसमें, तो क्या करें। गवर्नमेंट का सर कितना हो रहा है सर, कम से कम 1100 करोड़ तो होने चाहिए। इतनी सी बात सर, 1100 करोड़ भरेंगे, हाथ के हाथ जो है लीफ पकड़ाएंगे, ठीक है। वो उधर साइन करके एक रजिस्टर पे एंट्री मारेंगे, लैपटॉप लेके बैठेंगे। सर एक बार वो नंबर बता दो उसका डीडी का। मेरे को पता क्या बोलता है, डीडी को बुलाइयो। ये जो डीडी जो चलता है ना, डबल डी, एड ही देखा है तुमने कार्टून में, उसमें डबल डी कौन है नहीं मालूम, मैं हूँ डबल डी। कहेंगे डबल डी को बुलाइयो, डिमांड ड्राफ्ट। कह रहे ये है चलता फिरता डिमांड ड्राफ्ट। वही हाथ का लैपटॉप पे एंट्री मारेंगे, सोचा के लीजिए, पटाख से रिफ्लेक्शन आते के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो है ना कांटा क्यों घूमता, नुकसान नहीं होने देंगे सर। एक बार ने पूछ लिया हमारे से, ऐसी क्या बात है सर, परचेज है सर, परचेज तो करनी है। गवर्नमेंट का नुकसान लेकर फायदा क्या, दिमाग नहीं लगाने ना, तो सारा वाइट मनी है, ऐसे ही डालते हैं सर मार्केट में पैसा, ठीक है। मैं बता तो रहा हूँ, 3 दिन या 4 दिन दबा के प्रॉपर्टियाँ खरीदती है मेरी टीम, दबा के। यार इसका बड़ा अच्छा नाम था, ऐसा नाम भूल रहा हूँ यार उस बंदे का यार। अरे हीरा व्यापारी जो था, एक तो ये विजय माल्या भागा, एक मेहुल चौकसी भागा, एक और भागा था ना इंडिया छोड़ के। हाँ इसकी जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करी थी
पंजाब नेशनल बैंक ने खरीदी, मैंने खरीदी है। हाँ मैंने ऑर्डर दिए थे खरीदने, सुपरवाइज मेरी है। बोला हाँ, कई रोल्स रॉयस, BMW, फार्म हाउस सब थे इसके। बैंकिंग की, बैंकों की प्रॉपर्टी ऑक्शन कोई हो जी, कोई ऑक्शन हो बैंक की, क्या रेट लिखा है सर आपने? नहीं, आप अपना कैलकुलेट करके भर दो उसमें। और बिडर में सबसे पहला नाम मेरा, हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, ऑल ओवर वर्ल्ड में। ऑक्शन मेरे से ज़्यादा नहीं खरीदी किसी ने, एंटीक नहीं खरीदता, एंटीक नहीं। बहुत बार ऑफर आई मेरे पास, मैं नहीं खरीदता। कहाँ से लेके आया वहीं दे दे, मुझे जरूरत नहीं। मेरा इंटरेस्ट पता है सबसे ज़्यादा किस में रहता है? ज़मीन में, लैंड, लैंड और हाउस, और कुछ नहीं। बाकी ज्वेलरी वेलरी तो यार उठा के खरीदनी है, गोल्ड वोल्ड उठा के ला खजाने में डाल दे, भर दे, पढ़ते जाओ, कुछ नहीं। और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर कम है, फॉरेस्ट में ज़्यादा है इंटरेस्ट मेरा। फॉरेस्ट मिल जाता है ना कोई, फॉरेस्ट में बड़ा मजा आता है। तभी तो कांजीरंगा, तुम्हारा जिम कॉर्बेट, फिर ये क्या नाम है तुम्हारा, ये केरला में जो है वो कान्हा नेशनल, सारे सबकी बिड डाल दी मैंने, सबकी। नहीं बिकते हैं भाई साहब, बिकते हैं, सबकी बिड डाल रखी है मैंने। असोला, हाँ बिल्कुल डाली हुई है, हो गया होगा काम, तो पेपर बन रहे हैं, सब खरीदा हुआ मैंने। भारत में लगभग नेशनल पार्क खरीदे मैंने, बहुत ज़बरदस्त खेल है ये। कुछ करना धरना है नहीं उसमें, अपनी ज़मीन है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, छोड़ना। फार्म लैंड नहीं, फार्म लैंड तो यार वो है जो फार्मर्स वगैरह कर रहे हैं ना, करो। किसानों का मामला, किसान की ज़मीन खरीदना जो है ना, एक तरह से जो है वही है भाई, तुम खुशी से बेच रहा तो ठीक है, दुखी होके बेच रहा तो बता दे। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं फार्म लैंड में, तो हम तो फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ना। जैसा अलीजा शहर का ख़रीदा, तब वहाँ पे अलीजा शहर बर्ड सेंचुरी बनाने के लिए बोला हुआ है, चल रहा है काम, बिल्कुल बनेगी सर। और करना क्या भाई, खर्चा कम आता है यार उसमें, और लैंड डेवलप होती है बड़ी ज़बरदस्त। फ्रूट फार्मिंग जो है ना, फिर उसमें जो है वाइल्ड फ्रूट फार्मिंग करके छोड़ देते हैं। तो कितना करेंगे, पूरी धरती थोड़ी कर दूंगा। अभी 7,000, लगभग 7,000 एकड़ के लगभग ज़मीन है मेरे पास अभी, इंडिया और इंडिया के आसपास। ईरान में ख़रीदी, उसके पेपर तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया से खरीद लूँगा। हाँ, कितनी ऑप्शन है, टोटल लॉस बता दे, मार्केट रेट का 1.5 गुना दे दूँगा।
ओनरशिप क्लियर चाहिए, कब्जा क्लियर होना हो, ओनरशिप क्लियर चाहिए बस, डॉक्यूमेंट में क्लियर डिक्लेयर करके देनी है ओनरशिप, अखबार में ऐड चाहिए, बात खत्म। भाई कब्जा क्लियर हो ना हो हम अपने आप देखेंगे, वैसे तो बैंक अपने आप करवा देता है, बस हमारे को तो ऐड चाहिए होती है, आपने ऐड दे दी, बात खत्म है, हम अपने आप देखेंगे। ऑक्शन की ऐड आई होगी, ले साइन कर दूंगा, ले जा बैंक में, बोले भैया ले लिया बंदे। वो नहीं भैया, वो नहीं चलता, वो बात मुझे नहीं पता कि उसमें वो तुम्हारी ब्रोकरेज देंगे नहीं देंगे, मुझे नहीं मालूम भाई, मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में। किसके? नहीं नहीं, अलीजा शहर बर्ड सेंचुरी जो बन रही नहीं, वो तो बन के रहेगी भाई साहब, ना ना वो तो बन के रहेगी, जो लिख दिया वो काम होके रहेगा। पर हाँ ये है, कुछ जैसे टेस्ला का प्लांट था ना उड़ीसा वाला, मैंने कैंसिल कराया, वो ख़त्म कर दिया, फिर हम सुनेंगे ही नहीं, जो न्यूज़ क्रॉस करनी है करा ली है, बात खत्म। अच्छा। हम्म हम्म। मेहुल चौकसी तो वो था ना जो मोटा सा था, अरे यार नाम एकदम ही दिमाग से स्लिप हो रहा है यार इसका।
क्या नाम तो था यार इसका। हैं? खरीद लेंगे। मेहुल चौकसी की कितनी ऑक्शन है, खरीद लेंगे। विजय माल्या, नहीं नहीं खरीदेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, प्राइवेट नहीं खरीदते हम। बरताज लिखो एक चीज, ये शब्द है, इसी से नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो नाम ढूंढने दे यार जरा, एक मिनट गूगल पे। हाँ फिर बात करते हैं। नहीं नहीं बहुत बड़ी ऑप्शन थी यार इसकी, भरी थी मैंने।